Let's start the introduction of chapter 8 of your prose, Reach for the Top. This is second part, and in this segment we'll discuss about Maria Sharapova. Maria Yarovina Sharapova is a full name, and she was born on 19th April 1987 in Siberia of Russia. She is a Russian professional tennis player and she won 2012 London Olympics silver medal in tennis. So this chapter is again a replication of the first one, means a repetition of thoughts which was being covered in the first part, that was of your Santosh Yadav. In this part also, there are certain things which are in common to the first chapter, and they are being discussed here for your motivation purpose. This chapter is very high dose of motivation for you, that when you say I can't do this thing, that thing, or I will try, and likewise. So this is the story of Maria Sharapova, that how she became number one of the world in the tennis field in 18 years of her age. So there are certain things, and this is all about her life, how she started and how she stayed away in a very young age of her life, especially in 8 to 9 years of her age. She stayed away from her mother. She went to America, and her father was also there in America. He was working very hard to just meet the expenses of her training. Then it was not so easy for her in this young age to stay away from her mother. Then she won the women's single title in 2004 of Wimbledon. And in the following year, she became world number one. In 2005, she became number one of the world. She was having some great fascination towards the fashion, singing, dancing, and in fact, she used to be a part of the glamorous world also, which I would say. Then there are a lot of things about her which are being said in this one, and this is an extract of a biography from a newspaper. So there are certain very good things which are being mentioned in this chapter, which I would like to just say to you. The first one means you can say that what all things, or there are certain lessons from this chapter to be learnt. The first one is, nothing in this world ever comes in free. You have to pay a price for that. Number 2, instead of depressing, you must be more quietly determined, mentally tough, take care of yourself and never quit up. You should know what you want, means your goal must be clear to you. Number 3, when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. Put up with much humiliation and insults to steadfastly pursue your dream. Don't worry, I'll cover up in Hindi also. Number 4 point of this chapter, you have to be very, very competitive. There is no room for sentiments. You must work hard what you do. This is the mantra for success. Number 5, don't be pigeonholed or categorized. You must have talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice. That will take you to the top of the world. Let me repeat this again. Don't be pigeonholed or categorized. You must have talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice. That will take you to the top of the world. And here the last one, which she says, that in this fierce competitive world in fact, in this fiercely competitive world, only few children begin with a level of sacrifice and prepare to endure. Now, let me just cover up all the things which I just said to you in Hindi also. ये चैप्टर आपको मारिया शारापोवा जो
एक रशियन बैकग्राउंड की एक लड़की हुई जिसका जन्म साइबेरिया में हुआ, मारिया यूरोवेना शरापोवा, जिसका जन्म 19 अप्रैल 1987 को हुआ, और उसने ये 2012 लंदन ओलंपिक्स का सिल्वर मेडल जीता। रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हुई है ये, पेशेवर, एक रशिया की पेशेवर टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस खेलती थी। आज के दिन ये मॉडलिंग और उन चीज़ों में है, बट इसका जो करियर था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से भरा रहा, और आखिरी में जो है इसको वो चीज़ें नहीं प्राप्त हुई जो होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से इसका करियर उठा था। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो 8-9 साल की थी जब वो अपनी माँ से अलग हुई और अमेरिका में चली गई। वहाँ पर उसके पिताजी अमेरिका में गए उसके साथ, और वो किसी तरह से जो है पूरा दिन काम करके उसकी जो है ट्रेनिंग की फ़ीस को अदा करते थे। उसके लिए अपनी माँ से जुदा होना इतना आसान नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में उसको बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद सताया करती थी। 18 साल की उम्र में मारिया शारापोवा दुनिया की 1 नंबर की खिलाड़ी बनी, और इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से उसने जो त्याग किया, उसने जो है उसको दुनिया के शिखर तक पहुंचा दिया। उसने 2004 का विंबलडन, जो इंग्लैंड के अंदर एक शहर है उसके नाम पर है, ये लॉन टेनिस का एक चैंपियनशिप होता है जिसको ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। तो 2004 का विंबलडन चैंपियनशिप इसने जीता, और उससे अगले साल ये दुनिया की 1 नंबर की खिलाड़ी बनी। इसके अंदर फैशन, सिंगिंग और डांसिंग वगैरह का भी काफ़ी शौक था। ये नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ती थी। और इस चैप्टर में या इस एक्सट्रैक्ट में, बायोग्राफिकल एक एक्सट्रैक्ट है ये, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से दुनिया का 1 नंबर बनने के लिए किस हद तक त्याग करना पड़ता है। चीज़ें आप तक यूं ही नहीं आती हैं, उनके लिए उस तरह का त्याग करना पड़ता है और अपने आप को एक तरह से उसके अंदर से गुजारना पड़ता है, तब जाके चीज़ें वैसी आपके लिए बनती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये पूरी कहानी इसकी दी हुई है, और इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। इस चैप्टर से 5 या 6 पॉइंट्स निकल करके आते हैं, जो मैंने आपके लिए एक सिनॉप्सिस या एक तरह से यूं कहिए कि एक पॉइंट्स के रूप में तैयार किए हैं। बाकी हम जो भी चीज़ें होंगी इसमें जो है, जो टफनेस है उसका मेंटल सेटअप है, या किस तरह से वो रही, कहाँ से वो थी, क्या क्या उसने किया, क्या वो कहती है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट मैंने कुछ चीज़ें नोट करके आप लोगों के लिए रखी हैं, उनको सुनिए। पहला पॉइंट है वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एवर कम्स इन फ्री। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में प्राप्त नहीं होती है, मुफ्त में नहीं मिलती है। यू हैव टू पे ए प्राइस फॉर दैट। आपको उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ डिप्रेसिंग, परेशान होने की बजाय या गमगीन या एक तरह से दर्द महसूस करने की बजाय, यू मस्ट बी मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड। आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प रहें, शांत तरीके से, मीन्स शांत होकर के और ज़्यादा दृढ़ संकल्प हो जाएं, उदास ना रहें, मेंटली टफ, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा टफ बने, शक्तिशाली बने। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी जो है हमेशा केयर करें। एंड नेवर क्विट, और कभी भी जो है स्थिति से को छोड़ करके या एस्केप करके नहीं भागना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको अपना गोल पता होना चाहिए हमेशा। फिर मैं एक बार इस पॉइंट को कवर करता हूँ। परेशान होने की बजाय आप जो है शांत तरीके से और ज़्यादा दृढ़ संकल्प हो जाएं, मानसिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ हो जाएं, और अपनी देखभाल करें, अपनी केयर करें, और कभी भी स्थिति को छोड़ के भागे नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपका उद्देश्य या आपका गोल जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, जब आपके पास मीन्स जब आप कहीं ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे आपको के पास खोने के लिए कुछ भी ना हो और आपके पास कुछ ना हो, मीन्स आप ऐसी बैकग्राउंड से आए हों
आप बिल्कुल धूल या मिट्टी से उठ के आए हों और आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप खाली हाथ हों, तो ये आपको और ज़्यादा भूख लगा देगा और ज़्यादा दृढ़ संकल्प बना देगा कोई काम करने के लिए। ये जो दो चीज़ें हैं, आप और ज़्यादा अपमान या जो आपकी इंसल्ट टाइप होती है, ह्यूमिलिएशन, इनको सहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। अपने अपमान और अनादर को सहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। जब आप कहीं ऐसी जगह से आए हों जहाँ आपके लिए खोने के लिए कुछ ना हो और खाली हाथ हों आप, तो ये आपको और ज़्यादा जो है भूख से और आपको जो है अपने संकल्प के प्रति और निश्चयवान बना देता है, और आप और ज़्यादा जो है अनादर या यूँ कहिए कि अपमान को सहने के लिए तैयार हो जाइए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है या अपने सपनों की प्राप्ति के लिए और ज़्यादा जो है दृढ़ संकल्प बन जाइए। नंबर 4 पॉइंट, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा। इस दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं है और आप बहुत मेहनत करें जो भी काम आपको करते हैं। ये मंत्र है सक्सेस का, सफलता का ये मूल मंत्र है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। आपको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा और इस दुनिया में सेंटिमेंट्स के लिए, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत करें और ये सफलता का मूल मंत्र है। नंबर 5, कभी भी अपने आप को जो है एक नैरो माइंडेड मत रखिए या अपने को जो है एक चिन्हित करके एक जगह के लिए मत रखिए। यू मस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू मस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अनवेवरिंग डिज़ायर होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प जो है आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और आपके अंदर सेक्रीफाइस, त्याग करने की जो है तत्परता होनी चाहिए कि मैं कुछ भी दांव पे लगा दूंगा। दैट विल टेक यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको दुनिया के शिखर तक लेकर जाएगा। लेट मी रिपीट अगेन। अपने आप को कभी भी एक जगह पर एक फिक्स उसमें मत देखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने को एक्सप्लोर करिए। आपकी जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, और जो आपके अंदर दृढ़ निश्चय, एक सफलता प्राप्त करने की एक सोच होती है और कुछ भी त्याग करने की क्षमता या उसके लिए तत्परता, 3 चीज़ें बोली गई हैं इस चैप्टर में। टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस। ये तीनों चीज़ आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाएंगी। और लास्ट और 6 पॉइंट इसमें कहा गया है कि आज की जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया के अंदर केवल कुछ ही बच्चे हैं जो कि उस लेवल का सेक्रीफाइस और उस लेवल की शारीरिक एक तरह से एंड्योर, प्रिपेयर टू एंड्योर, अपने शरीर को उतना कष्ट देने के लिए तैयार होते हैं जितना मारिया शारापोवा ने दिया, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही आराम परस्त हो गए हैं। चैप्टर आपको बताता है कि किस तरह से कितनी यंग एज के अंदर मारिया शारापोवा ने शारीरिक कष्ट सहे और कितने हाई लेवल का जो है उसने सेक्रीफाइस किया, अपनी माँ को छोड़ दिया 8-9 साल की उम्र में। तो ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो कि आजकल के बच्चों के बस की बात नहीं है। 6 पॉइंट को एक बार फिर सुनिए ध्यान से। आजकल के इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया के अंदर, आजकल के बच्चे, कोई भी बहुत ही कम या यूँ कहिए कि शायद ही कोई बच्चा जो है सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है और शारीरिक कष्ट लेने को तैयार होता है, जैसा कि मारिया शारापोवा ने किया। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है मैं इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ। मैं इसके इंटरप्रिटेशन पे आऊँगा वेरी शॉर्टली।
इसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जो ये 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको जो है हम एक कलर पेज पे करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी हाईली मोटिवेशनल पॉइंट्स विच कैन चेंज योर लाइफ। फर्स्ट चैप्टर से भी हैं और इस चैप्टर से भी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है कुछ वहाँ से लिए जाएं और कुछ ये 6 पॉइंट्स यहाँ से हैं, इनको इकट्ठा करके एक जो है अलग से एक पेज बनाया जाए। देखते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे और वो आपके साथ आई जस्ट डिस्कस विद यू। विद दिस आई फिनिश द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस वन।